Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Waalaikumsalam. Okay. So, the topic of today's discussion is the fibroids. Fibroids are also known as the leiomyoma. Okay. Also known as the leiomyoma. What are fibroids? Fibroids are the smooth muscle cell tumor originating from the myometrium. What is this? This is the benign tumor from the myometrial cells. Fibroids are the benign, okay, tumors from the myometrial cells. Okay, as we all know, the uterus is made up of three layers. What are the three layers of the uterus? Anyone? Endometrium, Endometrium. myometrium, and perimetrium. Okay, very good. Okay, we all know that the uterus is made up of three layers, and the fibroids originate from which layer? From the myometrium. Okay, they are the smooth muscle cell tumor originating from the myometrium. You should know this that they are the benign tumors. Okay, they are the most common benign and the pelvic tumors. कितने common है ये? Basically, they are present in 80% of females. 35 to 40 ईयर्स की फीमेल्स में बेसिकली 80% फीमेल्स में ये प्रेजेंट हैं. तो ये क्या है? दे आर द मोस्ट कॉमन बिनाइन द pelvic tumors. Okay, they are the monoclonal tumors. what what is the meaning of this? What is the meaning of monoclonal? Monoclonal का मतलब होता है they originate from the single myometrial cell. Okay, they originate from the single myometrial cell. Okay, and they are the estrogen and progesterone dependent tumor. Basically, they are more estrogen dependent. What we had discussed, सबसे पहले हमने देखा कि fibroids are also known as the leiomyoma. Okay, they are the smooth muscle cell tumor originating from which layer? From the myometrium. They are the most common benign and pelvic tumors. ठीक है, they are the most common benign tumors and they are the most common pelvic tumor. 80% फीमेल्स में 35 to 40 ईयर्स की एज में ये प्रेजेंट होता है. दे आर द मोनोक्लोनल ट्यूमर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्लोनल? इसका मतलब होता है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द वन मायोमेट्रियल सेल and they are estrogen and progesterone dependent. Before discussing the type, we will discuss the risk factors. Okay, so what are the risk factors? Age. Basically, they are present in the reproductive age group. Which age? In the 35 to 40 years of age. Okay, race. कौन सी रेस ज्यादा इन्वॉल्व होती है? रेस इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होती है. ब्लैक वुमेन आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व. ओके, अर्ली मेनार्की is also the risk factor. Nulliparity and taking OCPs. Family history में if a 25 times more risk if first degree relatives are involved. इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी की मदर और सिस्टर इनको फाइब्रॉइड है तो शी इज एट 25 टाइम्स मोर रिस्क. रिस्क फैक्टर्स में एक होता है ओबेसिटी. ओबेसिटी क्यों है? क्योंकि ओबेसिटी में एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है और जब एडिपोज टिश्यू होता है तो इसमें पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन इजी होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन?
We had discussed earlier. We had discussed earlier that androgens are converted into estrogen in the adipose tissue. Okay. And risk factors is also the lifestyle. Lifestyle में क्या आता है? If a person is obese, if a person is taking alcohol, or if a person is eating red meat, so they are basically more at risk. Okay. तो एज में क्या है? एज basically the reproductive age group. Race में the most common involved race is the black woman. Early menarche, nulliparity, taking OCPs, family history में 25 times more risk of one if one degree the first degree relatives are involved. Okay, if a patient if अगर किसी की mother sister involved है तो उसमें फिर patient ज़्यादा risk पे होता है. Okay, obesity में क्या है? Because इसमें adipose tissue ज़्यादा होता है तो peripheral aromatization easy होता है. Okay, and lifestyle में if a patient is taking alcohol or if a patient is eating red meat, then they are at the higher risk. Okay. Types. Let me rub this all. Types basically, first we will divide the type into extrauterine and intrauterine. Okay. First we will take the extrauterine. Extrauterine we have two types. The broad ligament fibroid. The broad ligament fibroid and the cervical fibroid. The broad ligament fibroid is also divided into two types. They are true and false or pseudo broad ligament fibroid. Okay. What is the meaning of this? True broad ligament fibroid arises from the broad ligament, and false broad ligament fibroid are basically subserosal fibroid which grows towards the broad ligament. Okay. They are subserosal fibroid. अब मैं बताऊंगी subserosal fibroid क्या होता है. Which grows towards the broad ligament. Okay, तो fibroids के type में हम देखेंगे extrauterine and the intrauterine. We had discussed the extrauterine type. Extrauterine had two types, the broad ligament fibroid and the cervical fibroid. Then broad ligament is also divided into two types, the true broad ligament fibroid and the false or the pseudo broad ligament fibroid. True broad ligament fibroid basically arises from the broad ligament, and false or the pseudo are the subserosal fibroid which grows towards the broad ligament. Okay, then we will take the intrauterine types. Let me rub this. Intrauterine we have three types. What are the three types? They are the intramural, also known as the interstitial fibroid, which is the most common type. Okay, basically all fibroid arises from this type. Okay, then we have the, इसका मतलब क्या हुआ? Intramural is basically present in the wall. इसमें देखो ये वाले जो इमेज है, this is the intramural fibroid. They are present in the wall of the uterus. Okay, basically all fibroid arises from this type. Next we have the submucous type, which is 15%. Submucous is, this one is the submucous, and this is the subserosal. Okay, so uterine types is divided into three types. The intramural, which is also known as the interstitial, which is the most common type, that is 75%. Basically all fibroid arises from this type. Next we have the submucous type, which is 15%, and the subserous type. Okay, next we will take the classification.
दिस इज द टेबल टेकन फ्रॉम द बुक साक्षी अरोड़ा। फीगो ने फाइब्रॉइड की क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहले हम देखेंगे सब म्यूकस फाइब्रॉइड का 0, 1, 2 स्टेज है। ओके, तो 0 का मतलब क्या हुआ? पेडंक्यूलेटेड इंट्राकैविटरी। ओके, दिस इज द 0। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पेडंकल्स यहाँ पे पेडंकल्स प्रेजेंट है। ओके, दिस इज द 0। 1 में क्या है? 1 में दिस इज 1, ये इंट्राम्यूरल है लेकिन लेस देन 50%। ओके, दिस इज लेस देन 50% इंट्राम्यूरल। सेकेंड स्टेज में मोर देन और इक्वल टू 50% आर इंट्राम्यूरल। ओके, तो सब म्यूकोसल की क्लासिफिकेशन क्या है? 0, 1 एंड 2। व्हाट इज द 0? 0 इज द पेडंक्यूलेटेड इंट्राकैविटरी। इसमें पेडंकल प्रेजेंट है और दिस इज ऑल इंट्राकैविटरी। फर्स्ट स्टेज में क्या है? इंट्राम्यूरल है लेकिन लेस देन 50%। एंड सेकेंड स्टेज में more than or equal to 50% is intramural. Okay, next we will take the O. 3, 4, 5, 6, 7, 8. What is O? Let me rub this. Okay, then third क्या है? Contact endometrium. This is third. Okay, this is third. This is intramural 100%, but it is in contact with the endometrium. Okay, then fourth stage में this is intramural completely and this is not in the contact with the endometrium. Then we have the fifth में subserosal है, this is subserosal. 6 is also subserosal. इसमें सिर्फ क्या है कि this is more intramural and this is less intramural. Okay, this is less than 50% intramural. This is more than or equal to 50% intramural. Then we have the seventh stage, which is subserosal pedunculated, and 8 is other, that is cervical or parasitic fibroid. Am I clear? ये समझ आई स्टेजिंग आप लोगों को? Should I repeat? Yes, ma'am. समझ आ गया? Okay, जी मैम, समझ में आ गया। okay, okay. Let me rub this. This is the classification given by the FIGO. You should just learn this. आपने बस इतना याद कर लेना कि 0, 1, 2 किसके लिए है, कौन से टाइप के लिए है। इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 किस टाइप के लिए है। तो 0, 1, 2 बेसिकली सब म्यूकोसल के लिए है। 3, 4 is for the intramural, 5, 6, 7 is for the subserosal and 8 is others. Okay, then we will discuss the sign and symptom. The most common symptom is the asymptomatic. Okay, basically 80% patient of fibroids are 80% patients are asymptomatic. Okay, but if the symptom is present, then what is the most common symptom? Most common symptom is the menorrhagia. Why menorrhagia occurs? Menorrhagia occur, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या है? एंडोमेट्रियम growing on fibroid increases the
सरफेस एरिया. ओके, सेकेंड रीजन क्या है? यूट्रस इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली. एंड थर्ड क्या है? बिकॉज सरफेस अल्सरेशन हो सकता है. ओके, तो सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, अगर एसिम्टोमेटिक है ऑप्शन में, देन यू विल टिक दिस एसिम्टोमेटिक. फिर नेक्स्ट हमारे पास है मेनोरेजिया. मेनोरेजिया इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम. मेनोरेजिया क्यों होता है? endometrium growing on fibroid increases the surface area. Uterus is not able to contract properly, and there is surface ulceration. That's why menorrhagia occur. Okay, next we have the infertility. Why infertility occur? Let me rub this. Why infertility occur? Because the fibroid distort the shape of the uterus. Or fibroid can also block the fallopian tubes. Okay, that's why the infertility occur. They distort the shape of the uterus. They can block the fallopian tubes. That's why infertility can occur. Next symptom is the pain. Why pain occur? Because of degeneration, because of the torsion, because of the compression, because of sarcomatous change. Okay. Next symptom is the anemia. First symptom is the menorrhagia. Second is the infertility. Third is the pain. And fourth is the anemia. Next we have the pressure symptoms. प्रेशर सिम्टम्स में इंक्रीज फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है और यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकता है. इफ फाइब्रॉइड इज कॉजिंग प्रेशर ओवर द ब्लैडर, then the patient will present as the will present with complaints of urinary retention. And increased frequency कब होगी? When it will compress the sorry when the fibroid will compress the bladder, then there is increased frequency. And if it will compress the urethra, then there is urinary retention. Okay, ज्यादातर जो urinary retention होता है, it is associated with which type of fibroid? With the posterior cervical fibroid. Okay, तो pressure symptoms में first we have the increased frequency and urinary retention. Increased frequency is basically associated when the fibroid compresses the bladder, and urinary retention occurs when it compresses the urethra. Basically, it is associated with the posterior cervical fibroid. Next, we have the symptom of constipation if it compresses the rectum. If it compresses the pelvic veins, then the patient will present with edema and varicose vein. If it causes pressure symptoms over the alimentary tract, then the symptoms are dyspepsia and distension. And if it causes the pressure over the diaphragm, then we have dyspnea, not distension. This is dyspnea. Okay. The most common symptom is the asymptomatic. Then we have the menorrhagia, infertility, pain and anemia. And pressure symptoms depend करता है कि कौन से organ को वो compress कर रहा है. Okay. इतना सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. Okay. Next we will take the degeneration or secondary changes. Okay. The most common type of secondary changes is the most common type of degeneration associated with the fibroid is the hyaline degeneration. What is the meaning of this? इसका मतलब क्या हुआ कि फाइब्रॉइड जो स्मूथ मसल का बना हुआ था, it will convert into the glassy material. और proteinaceous
मटीरियल. ओके, तो मोस्ट कॉमन डीजनरेशन इज द हाइलाइन डीजनरेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि स्मूथ मसल का जो फाइब्रॉइड बना हुआ था, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लासी मटेरियल और द प्रोटीनेशियस मटेरियल. नेक्स्ट वी हैव द फाइब्रॉइड कैन आल्सो एट्रोफी. एट्रोफी भी हो सकती है, एट्रोफाइड भी हो सकता है फाइब्रॉइड. ओके, नेक्स्ट वी हैड द रेड और also known as the carneous degeneration. They most commonly occur during the pregnancy and second trimester. Why they occur? Because of the thrombosis of the blood vessels. Thrombosis of the blood vessel. Pregnancy में most common degeneration is the red or carneous degeneration, which basically occurs in the second trimester. Why they occur? Because of the thrombosis of the blood vessels. Okay, present कैसे करेगा? Tense होगा, tense and tender myoma होगा ये. Okay. नेक्स्ट डिजेनरेशन इज द मिक्सोमेटस डिजेनरेशन. मिक्सोमेटस में क्या होगा? फाइब्रॉइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू द म्यूसिनस मटेरियल. ओके, देन वी हैव द सिस्टिक जनरेशन. सिस्टिक डिजेनरेशन which is the most common degeneration in the post menopausal woman. Next degeneration is the fatty degeneration, and next is the calcific, which is also known as the worm stone, which is mainly with the subserous fibroid. Calcific degeneration is also is present with mainly with the subserous fibroid. Okay, अगर क्वेश्चन आ गया worm stone is seen with which type, you should know this. Okay, and the least common secondary change is the sarcomatous change. ओके, तो डीजनरेशन और सेकेंडरी चेंज में क्या होता है? मोस्ट कॉमन डीजनरेशन इज द हाइलाइन डीजनरेशन. क्वेश्चन में आपने देखना है कि इसमें प्रेगनेंसी में पूछा है या नॉर्मल पूछा है. अगर नॉर्मल पूछा है तो मोस्ट कॉमन डीजनरेशन इज द हाइलाइन डीजनरेशन. इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में पूछा है तो रेड और द कार्नियस डीजनरेशन, उसमें क्या होता है? थ्रोम्बोसिस ऑफ द ब्लड वेसल्स होती है और मोस्ट कॉमनली ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है. इसके अलावा मिक्सोमेटस होता है और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में सिस्टिक डिजेनरेशन इज द मोस्ट कॉमन. एंड कैल्सिफिक डिजेनरेशन इज मेनली एसोसिएटेड विद द सबसीरस फाइब्रॉइड. इसको वर्म स्टोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरा फाइब्रॉइड जो होता है ये कैल्सिफाइड हो जाता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द calcific worm stone. Okay, and the least common secondary change is the sarcomatous change. Most common is the hyaline degeneration and the least common is the sarcomatous change. इसका मतलब क्या हुआ कि फाइब्रॉइड अगर बेनाइन है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो मैलिग्नेंट हो. ओके, then we have the investigation of choice. Investigation of choice for the fibroid is the USG. USG में basically transvaginal sonography. Then we will see the structure of the fibroid. फाइब्रॉइड का स्ट्रक्चर होगा, कलर होगा इसका ऑफ वाइट और वाइट. बेसिकली जब इसका आपका इसका कट सेक्शन लेंगे तो इसका अपेयरेंस वर्ल्ड होगा, वर्ल्ड ऐसे करके इस टाइप से होगा. ओके, फाइब्रॉइड पे जो कैप्सूल होता है दैट इज द सीडो कैप्सूल. यू शुड नो दिस. ओके, एंड द बेस ऑफ द फाइब्रॉइड इज द ब्रॉड एंड इट इज मोर वेस्कुलर टुवर्ड द पेरिफेरी. You should know this. Suppose this is the fibroid, so they will be more vascular towards the periphery. Okay, so this is the structure of the fibroid. Before discussing the treatment, we will quickly revise the what we had discussed. हमने देखा कि fibroid is also known as the leiomyoma. They are the smooth muscle cell tumor, and from where which they originate? They originate from the myometrium. They are the benign tumors. They are the pelvic tumors and they are the most common benign tumors. They are the monoclonal tumors. Monoclonal का मतलब हमने बताया था आपको कि they originate from the single muscle cell, single myometrial cell. इसका जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है, जीन म्यूटेशन की वजह से भी होता है ये. ओके, जीन जो इसमें इन्वॉल्व होती है, इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व होती है MED12 जीन और द HMG A2 जीन म्यूटेशन की वजह से भी फाइब्रॉइड हो सकता है. ओके, दे आर द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन डिपेंडेंट ट्यूमर. बेसिकली मोर कॉमनली जो होता है ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर होता है. टाइप्स में हमने देख लिया था एक्स्ट्रा यूट्राइन और इंट्रा यूट्राइन. एक्स्ट्रा यूट्राइन में क्या क्या था? सर्वाइकल फाइब्रॉइड एंड द ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड. फिर ब्रॉड में भी ट्रू और फॉल्स या सीडो फाइब्रॉइड था.
टाइप से मोस्ट कॉमन जो होता है दैट इज द इंट्राम्यूरल और द इंटरस्टिशियल. इसके बाद होता है सब सीरस एंड द सबम्यूकस. रिस्क फैक्टर्स आपने देख लिए. ओके, हमने इसका फीगो का फाइब्रॉइड का क्लासिफिकेशन देख लिया कि 0, 1, 2 बेसिकली इंट्राम्यूरल के साथ है. 3 और 4 सॉरी 3 और 4 इज द 5, 6, 7 is the subserosal, and 3 and 4 is the 3 and 4. Okay, 3 and 4 is the intramural, and 0 and 1 and 2 is the submucous. Sign and symptoms. Sign and symptoms में मेनोरेजिया, इनफर्टिलिटी, पेन एंड एनीमिया देख लिया है. डीजनरेशन देख लिया हमने. एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज द अल्ट्रासोनोग्राफी. देन वी विल टेक द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में ये डिपेंड करता है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है या सिम्प्टोमेटिक है. तो एसिम्प्टोमेटिक में हम देखेंगे पेरी. अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है देन पेरी और पोस्ट मेनोपॉजल वुमन या प्रेगनेंसी है तो वी विल गिव द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट. एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? वी विल वेट कि फाइब्रॉइड खुद से श्रिंक कर जाए. ओके, पर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट हम कब नहीं करते हैं? Not done in the sarcomatous change. If we suspect the patient is undergoing the sarcomatous change, if there is torsion, if there is infertility or recurrent abortion, and if there is sudden increase in the size. Okay, and symptomatic treatment. Symptomatic treatment में हम देखेंगे सब म्यूकस का अगर टाइप 0 और 1 है तो उसको उसमें हम करेंगे हिस्ट्रोस्कोपिक रिमूवल. ओके, नेक्स्ट वी विल टेक द इंट्राम्यूरल और सब सीरस. इंट्राम्यूरल और सब सीरस फाइब्रॉइड में भी हमारा दो टाइप का ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंड द सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में बेसिकली हमारा एम होता है टू डिक्रीज द ब्लीडिंग, एंड सेकेंड लाइन में हमारा एम होता है डिक्रीज ब्लीडिंग एंड साइज. ओके, तो डिक्रीज ब्लीडिंग के लिए हम यूज करते हैं ओसीपीज, प्रोजेस्टेरिन आयोडी एंड ट्रेनिक्सामिक एसिड. ट्रेनिक्सामिक एसिड इज द नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट सेकेंड लाइन में डिक्रीज ब्लीडिंग एंड साइज. इसमें फर्स्ट लाइन जो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो होता है दैट इज द जीएनआरएच एंटागोनिस्ट. ओके, जीएनआरएच का हमारा हमें पता है पहले से जीएनआरएच रिलीज होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, एलएचएफएसएच रिलीज करता है और एस्ट्रोजन रिलीज करता है फ्रॉम द ओवरी. ओके, तो अगर इसका एंटागोनिस्ट है तो ये यहाँ पर काम नहीं करेगा. ओके, देन वी हैव द जीएनआरएच एनालॉग्स. अब जीएनआरएच एनालॉग किस तरीके से काम करता है? अगर हम इसको जीएनआरएच एनालॉग, ये जो जीएनआरएच रिलीज होता है दिस इज इन द पल्सटाइल मैनर. ओके, तो अगर जीएनआरएच एनालॉग कोई कंटिन्यूअस मैनर में देगा then it will decrease the bleeding and size. Next we have the aromatase inhibitor. Aromatase inhibitor में आता है letrozole, and next we have the danazole. That is the anti-estrogenic and the androgenic drug. Let me rub this. Next treatment is the embolotherapy. Embolotherapy में क्या करते हैं? बेसिकली हमें इसको साइज को डिक्रीज करना है तो यूट्राइन आर्टरी इज ब्लॉक्ड बाय द पॉलीविनाइल अल्कोहल और जेल फोम. ओके, तो इससे क्या होता है कि जो फाइब्रॉइड का साइज है वो श्रिंक कर जाता है. नेक्स्ट वी हैव द सर्जिकल मैनेजमेंट. इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है या पेशेंट डिजायर्स प्रेगनेंसी. ओके, अगर फैमिली कंप्लीट है तो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं, और इफ अ पेशेंट डिजायर्स प्रेगनेंसी देन वी विल डू द मायोमेक्टमी. एक सिंड्रोम होता है सीडो-मीक एंड मीक सिंड्रोम, ये आपको पता होना चाहिए. सीडो-मीक सिंड्रोम में क्या होता है? सीडो-मीक सिंड्रोम में तीन चीजें होती हैं, राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस एंड फाइब्रॉइड और ओवेरियन ट्यूमर
which is other than fibroma or thecoma. Okay, this is the pseudo Meeks syndrome. अगर फाइब्रोमा और थीकोमा ही प्रेजेंट है, देन दिस इज द मीक सिंड्रोम. तो सीरो मीक सिंड्रोम में क्या होता है? राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस, फाइब्रॉइड और द ओवेरियन ट्यूमर्स अदर देन द फाइब्रोमा और थीकोमा. एंड मीक सिंड्रोम में है fibroid and ovarian tumors, which is fibroma or thecoma, right-sided pleural effusion, and the ascites. This is the treatment of the fibroid. Then the most common in fibroid. Okay, this is the table taken from the book Sakshi Arora. Most common variety of the fibroid is the intramural or interstitial, which is followed by submucous and subserous. Fibroid with maximal symptoms is the submucous type. To start with, all fibroids are interstitial. Most common fibroid to undergo malignant change is the submucous fibroid. Most common fibroid to cause retention of the urine is the posterior cervical fibroid. अभी हमने देखा था ये चीज पीछे. टॉर्जन किसके साथ ज्यादा होता है? अगर कोई सब सीरस है और लार्ज पेडिक्यूलेटेड फाइब्रॉइड है. और सीडो मीक सिंड्रोम के साथ मोस्ट कॉमनली कौन सा फाइब्रॉइड होता है एसोसिएटेड? सब सीरस फाइब्रॉइड. मोस्ट कॉमन मेंस्ट्रुअल सिम्टम मेनोरेजिया एंड इन्वर्जन किसमें ज्यादा होगा? फंडल फाइब्रॉइड में. और अगर फंडल फाइब्रॉइड है तो मोस्ट कॉमन सिम्टम उसका भी मेनोरेजिया होगा. अगर एबॉर्शन विच लीड्स टू मैक्सिमम एबॉर्शन इज द सबम्यूकस फाइब्रॉइड. वेंडरिंग और पैरासिटिक फाइब्रॉइड क्या होता है? सब सीरस फाइब्रॉइड. एक होता है लैंटर्न ऑन डोम ऑफ सेंट पॉल. ये किसके साथ होता है? सर्वाइकल फाइब्रॉइड. इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा सा यूट्रस होता है और बहुत ही बड़ा सा सर्वाइकल फाइब्रॉइड होता है. तो इसको बोलते हैं, इस अपीयरेंस को बोलते हैं, दिस इज द सर्वाइकल फाइब्रॉइड, दिस इज द यूट्रस. तो इसको बोलते हैं लैंटर्न ऑन डोम ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल. ओके, तो आपने ये बस देख लेना है कि लैंटर्न और डोम ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल किसके साथ एसोसिएटेड है. सीडो सर्वाइकल फाइब्रॉइड इज अ फाइब्रॉइड पॉलिप एंड कैल्केरियस डिजनरेशन जो या फिर कैल्सिफिक डिजनरेशन जो ज्यादा होता है वो सबसीरियस फाइब्रॉइड के साथ होता है. ये हमने पीछे देख लिया था. नेक्स्ट टॉपिक वी विल टेक इज द पॉलिप. पॉलिप आर द लोकलाइज्ड हाइपरप्लास्टिक ओवरग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा अराउंड द वेसल कोर. आपने ये देखना है कि फाइब्रॉइड कहां से ओरिजिन हो रहा था? फ्रॉम द मायोमेट्रियम. एंड पॉलिप कहां से हो रहा है? They are the overgrowth of endometrial glands and stroma. Okay, they are the cause of abnormal uterine bleeding and postmenopausal abnormal uterine bleeding in postmenopausal and premenopausal women. Okay, इसका अपीयरेंस क्या है? इसका अपीयरेंस है नैरो होता है, ये बीफी रेड कलर का होता है. इसको आपको कंपेयर करना है फाइब्रॉइड से. फाइब्रॉइड का कलर क्या था? व्हाइट या फिर ऑफ व्हाइट था. ओके, और ये सॉफ्ट एंड फ्राइबल होता है. इसके रिस्क फैक्टर्स में भी ओबेसिटी और इंक्रीजिंग एज है. सिम्टम्स में है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. अल्ट्रासाउंड में हम क्या देखेंगे? हमारे पास होगा हाइपर इकोइक मास विद नैरो बेस. हाइपर अभी हमने देखा था कि फाइब्रॉइड में ब्रॉड बेस होता है. पॉलिप में कैसा होगा? बेस विल बी नैरो. ओके, और यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड में दिखेगा वो हाइपर इकोइक लीजन्स होंगे. ओके, डॉपलर में होगा फीडिंग वेसल साइन. फीडिंग वेसल साइन का मतलब क्या हुआ कि एक वेसल है दैट इज रनिंग टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, जैसे मैंने आपको फाइब्रॉइड में बताया था कि इस तरीके से फाइब्रॉइड है तो पूरा पेरिफेरी में प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होता इसमें. पॉलिप में क्या होता है? सिंगल blood vessel running towards the center. इसको बोलते हैं feeding vessel sign. Investigation of choice for the polyp is the hysteroscopy and treatment क्या करेंगे? hysteroscope के थ्रू polyp को remove कर देंगे. Okay, तो difference क्या है कि they are the overgrowth of endometrial glands and stroma.
एंड इसका प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमनली क्या होता है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकता है। एबनॉर्मल का मतलब क्या है कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। ओके, और जैसे अगर कोई भी प्री मेनोपॉजल फीमेल है तो इसमें क्या हो सकता है, या तो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर कोई पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है तो उसमें पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है। इसके बाद यूएसजी में हमें क्या दिखेगा, नैरो बेस होगा और मास जो होगा वो हाइपर इकोइक होगा। डॉपलर में फीडिंग वेसल साइन होगा। मैंने फीडिंग वेसल साइन आपको नहीं हो रही मैम। जी हेलो, क्या बोल रहे हो, हेलो, एम आई ऑडिबल? इन सो नहीं हो रही मैम, ऑडिबल। स्क्रीन नहीं दिख रहा आप लोगों को? मेरे को तो दिख रही है मैम। आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर नेटवर्क। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? यस नजर आ रहा है। बच्चे आप अपना नेटवर्क चेक कर लो, मुझे लगता है आपके नेटवर्क के साथ प्रॉब्लम होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पॉलिप में हिस्टेरोस्कोपी होता है और ट्रीटमेंट हम इसका क्या करते हैं, हिस्टेरोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी। अब हम डिफरेंस देखेंगे फाइब्रॉइड में, पॉलिप में और एडिनोमायोसिस में। ओके, तो हमने देखा बेसिकली फाइब्रॉइड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फाइब्रॉइड ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द मायोमेट्रियल सेल। ओके, एंड पॉलिप कहाँ से ओरिजिनेट होता है, एंडोमेट्रियल ग्रोथ। एंड एडिनोमायोसिस क्या होता है, एडिनोमायोसिस इज बेसिकली द इन्वेजन इनसाइड द मायोमेट्रियम। एज में क्या होता है, फाइब्रॉइड ज्यादातर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है, पॉलिप प्री मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल में होता है, लेकिन ये और भी एज में हो सकता है। इसके बाद एडिनोमायोसिस ज्यादातर मोर देन 45 ईयर्स में प्रेजेंट होता है। सिम्टम्स में हमने देखा था कि मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है फाइब्रॉइड का वो एसिम्टोमेटिक होता है। पॉलिप्स में एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड एडिनोमायोसिस में मेनोरेजिया। उसके बाद एग्जामिनेशन में क्या होगा, यूट्रस फाइब्रॉइड में इनलार्ज होगा। पीरियड ऑफ जेस्टेशन जो होगा वो बेसिकली 20 वीक्स के आसपास होगा, लेकिन यूट्रस फिर भी नॉन टेंडर होगा और एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट होगा यूट्रस का। ओके, पॉलिप में भी नॉन टेंडर होगा लेकिन यूट्रस नॉर्मल साइज का होगा। एडिनोमायोसिस में यूट्रस टेंडर होगा और सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट होगा। और इसमें जो जस्ट अगर हम देखा जाए कितना इनलार्जमेंट होगा तो ऑलमोस्ट 13 टू 17 वीक्स तक का यूट्रस इनलार्ज हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर करवाएंगे तो फाइब्रॉइड में हमने देखा क्या था, यूएसजी, जिसमें क्या था, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। पॉलिप में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज द हिस्टेरोस्कोपी एंड एडिनोमायोसिस में एमआरआई। टेक्सचर देखेंगे, दे आर द आइसोइकोइक लीजन। ओके, पॉलिप में दे आर, हमने अभी देखा, दे आर नॉट आइसोइकोइक, दे आर हाइपर इकोइक। मैम इसके मीनिंग क्या है, आइसो हाइपरइकोइक की? मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चों, क्या बोल रहे हो? आइसोइकोइक और हाइपरइकोइक की मीनिंग बताओ। अच्छा, ओके, तो बेसिकली जो आइसोइकोइक का मतलब होता है कि जो सराउंडिंग टिश्यू है ना उसके सेम टेक्सचर का ये भी होगा। और हाइपर इकोइक का मतलब होगा कि दे आर डार्कर देन द सराउंडिंग टिश्यू। ओके, अपीयरेंस में अभी हमने देखा कि जो फाइब्रॉइड है उसमें सीडो कैप्सूल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, लेकिन पॉलिप्स आर पुअरली डिफाइंड। बेस ऑफ द फाइब्रॉइड इज ब्रॉड एंड पॉलिप का बेस नैरो होता है। साइन देखिए तो फीडर वेसल साइन मैंने आपको बता दिया, और साइन इसमें होता है वेनिशियन ब्लाइंड साइन। वेनिशियन ब्लाइंड का मतलब क्या हुआ, इसमें क्योंकि टेक्सचर जो होता है वो हेट्रोजिनस होता है, इसका मतलब क्या होता है, कहीं पे हाइपर इकोइक है, कहीं पे
हाइपोइकोइक है। तो इसका ऐसे ये कैसे दिखेगा? वेनेशियन ब्लाइंड का मतलब होता है बिल्कुल डार्क होगा, फिर लाइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर लाइट होगा, फिर डार्क होगा। इस तरीके से इसका अपीयरेंस होता है। तो इसको बोलते हैं वेनेशियन ब्लाइंड अपीयरेंस। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।